गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। किरपा करे गुर पाईऐ हर नामों दे दिरड़ाए। बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए। मनमुख कर्म कमावने दरगह मिलै सजाए। मन रे दूजा भाव चुकाए। अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए राव। अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए। वाहिगुरु ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह निमाणिया दे मान सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण कीते होए राग श्री राग दे पवित्र अंग 33 उपर सुभाएमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां बचनां राही सानू की उपदेश बख्शदे हन कि जिहड़ा गुरु दा मिलाप है ना ये भी परमेश्वर दी किरपा नाल हुंदा। जे असीं गुरु चरनां विच आके बैठे हाँ बैठदे हाँ ते ये साडे वड्डे भागां दी निशानी कि परमेश्वर ने किरपा करके सद्दिया। जे मनुख दी मर्जी हुंदी ते सारी आके बह जाण, पर जिन्हां जिन्हां ते उस परमेश्वर दी किरपा हुंदी आ वो प्रेरदा किसी न किसी तरह किसी दे राही। घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार प्रेरणा करदा है। साडे विच ही एक दूजे दे बैठ के ते साडे विचों ही एक दूजे नूं प्रेरणा कर दिंदा है। हुक्म ही हुक्म चलाए राहो नानक बिगसै बेपरवाहो। वो अपने हुक्म दे नाल सानू सब नूं चला रहा है। ते हुक्म कित्थों आउंदा है? कुदरत विचों ही एक दूसरे दे विचों ही असी कई बारी हैरान हुंदे हाँ। जिस तरह एक इतिहास की साखी है, भाई साहब भाई गुरदास जी काफ़ी समय बाद बाहर प्रचार करके मुड़े। चौथे पातशाह वेले गए सन ते पंजवें पातशाह वेले वापस आए। जदों पता लग्या भी चौथे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए हैं तो उत्थों वापस चले। ते उन्हां दे आउण तो पहला सतगुरु अर्जन देव महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। ते जदों जथे दे समेत संगतां समेत ते ब्यासा दरिया कोल पहुंचे, किथे पहुंचना सीगा सतगुरां ने गोइंदवाल साहब ते मूहरे आया ब्यासा दरिया। ते गुरु प्यारिओ हुण ब्यासा दरिया चढ़िया होया ते इहनूं संगतां ने पार करना है। रात दा समा सी, किश्ती भी कोई है नहीं सी उस वेले। ते इन्हां ने गुरु प्यारिओ सलाह कीती संगत नाल भी हुण की कीता जावे। ते विचों किसी शरधावान सिख दे मुख चों बचन निकलिया, भाई साहब जी गुरु साहब जी का वचन है, सुनिया सरा गुणा के गाह।
ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਓਏ ਗੁਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਛਲੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੀਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਮਾਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਛੇਮਾਨ ਜਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖੀ ਆ ਜਥੇ ਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਸੂਈ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਆਪੇ ਬੁੱਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਧਲਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਧਲਾ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨੀਚ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਅੰਧਲਾ, ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰਦਾ ਘਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅੰਧਲਾ, ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਣੇ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਲਗਭਗ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮਨ ਵਸੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਧਲਾ, ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਾਬਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਚਲਾਕੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਮਗਰੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। ऐसा नेटवर्क उस परमेश्वर का। कहने लगे काजी साहब तुहाडे घरे रात घोड़ी सूई है। राजा हैरान, कहने सूई है घोड़ी? कहने हाँ जी। कहने तुहाडे विहड़े विच एक खूही है, खाता है, ते तेरा ध्यान तो बछेरे मगर भज्जिया फिरदा, भी बछेरा हाले छोटा छाला मारदा फिरदा है, किते खूही च न डिग पे। कहो सतनाम सी। राजा आपदी गल तां भुल गया तो काजी नूं कहना क्यों काजी साहब गल सही है? कहना जी गल तां सही है, इस करके परमेश्वर जिहड़ा है सृष्टि नूं हुक्म दे नाल ही चला रहा है। हुक्म ही हुक्म चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह। प्रीतम जी कहंदे इसे तरह ही जिन्हां ते किरपा करदा उन्हां नूं प्रेर के गुरु कोले लिआउंदा। कोई भी बहाना बन जे, चाहे कोई अरदास कराउण दा बहाना बन जे, चाहे किसी बच्चे दी अरदास कराउण दा बहाना बन जे, चाहे किसी होर काम आए होइए, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के गुरु कोले लै आउंदा। इत्थे आउंदा जदों गुरु दी गल कंन च पैंदी है, फिर कहंदा यार मैं तां रोज़ आया करां। कहो सतनाम श्री। भाई मंझ भी किसी वेले आया सीगा, भाई बिधि चंद भी चोर किसी वेले चोरी करके गुरु दे प्यारे दी संगत च आया। कहो सतनाम श्री। पहला लोकां दीयां मझां चोरी कर लैंदा सीगा। जे किसी दी पुरातन दी गल कह दईए ना गुस्सा कर जांदा है। जे वाल्मीकि दी पहली रचना कह दईए, पहली जीवन दस दईए तो दुनिया लड़ पैंदी है। हाँ हाँ साडे वाल्मीकि नूं इदां क्यों कहा है? वो तुसी ये सोचो भी परमेश्वर दे नाम दी किन्नी पावर है, एक भैड़े बंदे नूं बदल के एक महान संत बना देता। कहो सतनाम श्री। ये तो सोचो ना। भाई बिधि चंद की गल कर लग्या मैं, वो चोरी करते सीगे, कोई माड़ी गल नहीं, करते सीगे, दस्सण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, घाट नहीं आउंदी, बल्कि परमेश्वर दे नाम दी महिमा दा पता लगदा भी उस किन्ना फर्क है। ते जद एक दिन चोरी की, घर वाले जाग पे, मझां खोलतियां सीगियां, संगल खोलते सी, हक लियां सी, रौला पै गया चोर चोर दा, लोग मगर भज लए ने, मझां भजाइयां। वेख्या भी हुण फड़िया गया तो कुट के मार देणगे। एक साध दा डेरा खुला सी, गुरसिख साधु सी, ब्रह्म ज्ञानी, नाम जपण वाली रूह सी। वो डेरे में कोई गेट नहीं लग्या, भज के वो डेरे च वड़ गया। कहना बाबा जी बचाओ। क्यों की हो गया? कुट के मार देंगे लोग। क्यों? मारे मैं चोर हाँ। अच्छा फिर मैं चोरी की सी, मैनू फड़ लिया तो मार देंगे। कहते ऐ कर आ कंबली लैके तू मेरे को बह जा नाम जपन। कहो सतनाम श्री। कंबल जा लैके तड़के अमृत वेले वो बैठा है, उत्ते बुक्कल मार के साधु गुरसिख नाम जपण वाली रूह, एक कंबल होर पिया, कहते तू भी बुक्कल मार के बह जा इत्थे। वो भी बह गया कोले बुक्कल मार के। इन्ने पिंड वाले आए, कहने बाबा जी, बड़ा सत्कारयोग सी साधु वो पिंड विच। बाबा जी इधर एक चोर आया। कहते वेख लो भाई असी चोर है कि साध है। कहो सतनाम, झूठ भी नहीं बोलिया। नहीं महाराज तानू तो नहीं कहा, साडियां मझां खोल के चोर कोई भजा के लियाया है। कहने मझां उत्थे छप्पड़ छप्पड़ च वेख लो बैठियां होणगियां, सानू नहीं पता। कहो सतनाम श्री। जब छप्पड़ वाल गए तो उन्हां दीयां बोरियां मझां उन्हां नूं कालियां दिसन। कहो सतनाम श्री। ते भाई बिधि चंद जी उस गुरसिख दे कोल तड़के तक बैठे रहे, जान बच गई। तड़के पैरी पै गया महापुरुषां ने, बाबा जी बड़ी जान बचाई, अज तां मारते सीगे। महापुरुष कहने लगे भलिया मानसा इन्हां कामां च की रखे है, तेरी जान बचाई है गुरु अर्जन देव जी ने, चल तैनूं उन्हां दे पैरी पावां। कहो सतनाम श्री। फिर भाई बिधि चंद जी सतगुरु अर्जन देव जी की हजूरी च आ गए। बस बाकी दी जिंदगी फिर उन्होंने चोरी नहीं की, गुरु घर के कामां च लग पे, सेवा की, सिमरन किया, तो अपनी जिंदगी सफली की।
तो इस करके वो परमेश्वर जदों किसी नूं प्रेरणा करदा है, बख्शिश कर रहे सी सतगुरु। श्री राग महला तीजा, किरपा करे गुर पाईए हर नामों दे दिरड़ाए। जदों किरपा करदा किसी मनुख ते, रोज़ आपां यही तो अरदास करते हैं, सही प्यारियां मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे। जदों किरपा करदा है उहनूं हरि दे नाम दी बख्शिश करदा है। फिर वो भाई साहब भाई बिधि चंद जी एक महान गुरसिख बने, छेवें पातशाह तक रहे। जंगा युद्धां दे विच उन्हां ने हिस्सा लिया। गुरु घर दे बहुत सारे कारज उन्होंने सेवा सिमन करके कीते। तो इस करके परमेश्वर किवें काम करदा है, तुहाडे विच ही बैठ के करदा है, वो कोई लहदा तो चल के नहीं आउंदा। प्रीतम जी कहंदे फिर की करदा परमेश्वर, गुरु कोले पहुँचा दिंदा किसी न किसी बहाने, जिवें विधि चंद नूं पहुँचाया। फिर गुरु फड़दा बांह, पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे। साडे कर्मां दी पैकिंग साडे अंदर ही रखी है परमेश्वर ने। वो निक्की जी चिप साडे दिमाग दे विच फिट कीती हुई है। जिवें किसी मोबाइल छोटी चिप जद खोलदे आ उहदे विच बेअंत समान निकल आउंदा, इवें जिवें मनुख दे अंदर इहदे कर्मां दी चिप भी है। उहदे विचों हौली हौली इहदे कर्म प्रगट हुंदे रहिंदे आ, चलदी रहिंदी है वीडियो आडियो। ते जदों कोई माड़ा कर्म आउंदा है उदों इहनूं दुख दे जांदा है, जदों कोई चंगा कर्म आउंदा सुख दे जांदा है। ते कई बारी पता नहीं कदों इहो जिहा कोई चंगा कर्म कीता हुंदा सानूं गुरु नाल भी मिला जांदा है। उहनूं कहा पातशाह ने, पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे। जदों पूर्वले चंगे कर्म फुटे, अंकर की है, बीज दा फुट के धरती चों बाहर निकले आउण। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेटिओ पुरख रसक बैरागी। उदों रसीए पुरखां दी, नाम जपण वाले पुरखां दी संगत हुंदी है, ते उन्हां दे बहाने असीं गुरु कोले पहुंच जाने हैं। प्रीतम जी कहंदे फिर गुरु की करदा है, भाई मंझ दी बांह। जदों भाई मंझ भी एक दिन किसी बहाने गुरु अर्जन देव जी की संगत च पहुँच गया, तो पहले दिन ही संगत सुन के मन बना लिया भी आपां तां सरबरीए नूं छड्डो ते गुरु अर्जन देव जी दे लड़ लगी है। इस तरह पता नहीं कितनियां संगतां किसी न किसी बहाने सतगुरु इकट्ठियां कर लैंदा, करी जा रहा है। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह काबे सीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कट्टे हों मैं रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना धुरै पया संजोग। आप जी दे वड्डे भाग आ, ये धुरों संजोग आ। संजोग चंगा मिलाप ते विजोग चंगे मिलाप तो कट्टिया जाना ते माड़े पासे तुर पैना। को सतनाम श्री। तो इस तरह फिर की हुंदा, गुरु की करदा, जब गुरु कोल सिख पहुंच गया, बिन गुर किनै न पायो, बिरथा जन्म गवाए। परमेश्वर गुरु कोले लियाउंदा है, गुरु हर नामों दे दरड़ाए। गुरु कहना परमेश्वर का नाम जप, क्योंकि परमेश्वर साडे बारे पता ही नहीं, सानू कित्थे रहिंदा परमेश्वर, रब कित्थे रहिंदा है, उहदी जानकारी गुरु कोलों मिलनी है। तां ते परमेश्वर गुप्तो गुप्ती सानू गुरु तक पहुँचा दिंदा। जिवें कोई लड़के वाले किसी विचोले की ड्यूटी ला देन, सानू कोई लड़की लभ के दिओ, लड़का ब्याहना, ड्यूटी तो लड़के वाले ने लाई है ना, तो लभदा फिरदा विचोला। को सतनाम सी। तो एक दिन वो विचोला दोनों नूं इकट्ठे करदा, क्योंकि वो दोनों घरां नूं जाणदा है। इवें गुरु जिहड़ा है दोनों दरां दा विचोला है, दोनों घरां नूं जाणदा है, सानू भी जाणदा है ते उहनूं भी जाणदा है। इस करके परमेश्वर ने ड्यूटी लाती गुरु दी कि इन्हां नूं मेरे नाल मिला। ते गुरु फिर एक कार्ज करदा है, जेड़े जेड़े इहदे छतरी हेठां आ जांदे है, छत्र छाया विच आ जांदे है, उन्हां नूं परमेश्वर नाल जोड़ना शुरू करदा है। ये गुरु नानक ने 10 जामिया विच वरत के कार्ज किया। अज भी गुरु कृपा कर रहे हैं।
सतगुरु पातशाह जी कहते हर नामों दे दिरड़ाए बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए ते याद रखियो गुरु तो बगैर कोई भी नहीं पहुंचे परमेश्वर तक। लोड़ है पूछो ब्रह्म है नारद है गुर बिन तरिया ना कोय गुरु गुरु गुर करमन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जा की कोई न मिटे दात। गुरु फिर कहता आ तैनू दसा तेरा घर केड़ा। जिवें लड़की दे परिवार नूं मिल के विचोला दसदा है कि तुहाडे वास्ते उत्थे एक मुंडा है वो वधिया रहेगा। इसे तरह ही गुरु कहता आ रूह हे जीव आत्मा तैनू तेरे घरे पहुंचा दें। परमेश्वर वाजा मारदा तुम घर आवो मेरे मीत मित्रा घरे मुड़िया। भगत भी कहता है सिख भी कहता है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों चिर पे दर्शन देखे हिम्मत कीती उदम कीता उन्हां भगतां ने। उन्हां समयां दे विच जदों अखौती धर्म दे मुखी ब्राह्मण लोक शूदर शूदर नीच कह कह के धार्मिक स्थानां तो मंदिरां तो इन्हां लोकां नूं दूर रखदे सी। उन्हां समयां दे विच भगत रविदास जी भगत कबीर साहब जी वर्गियां ने उद्यम कीता ते अपना घर लभ लिया। अपना आप ही नहीं लभ्या होर भी कईयां नूं मिला दिता। को सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहंदे आओ सिखो उस परमेश्वर नाल जुड़िए। बिन गुर किने न पाया बिरथ पायो बिरथा जन्म गवाए मनमुख कर्म कमावने। ते जे मित्रों नहीं गुरु वाले बनोगे तो फिर गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता तुहाडा जीवन बर्बाद हो जाना। को सतनाम श्री। जिन्हां ने मनमत कीती मनमुखां वाले कर्म कीते उन्हां नूं इत्थे ते उत्थे दोहां जहानां च फिर सजा मिलदी आ दुख भोगने पैंदे आ। मन रे तां ते आ मना तू तां मन जा। क्योंकि जदों मन रे कहांगे तां असीं अपने आप नूं कहांगे ते संसार जिहड़ा है दुनिया नूं सुधारन ते लग्या होया है ते बाणी कहंदी तू आपे आप नूं सुधार लै सारी दुनिया सुधर जू। सारे अपने आप नूं सुधारना शुरू कर दईए तां दुनिया सुधर गई। अपने आप नूं सुधारीए ना दुनिया नूं सुधारन दा ठेका चक लईए एक भी नहीं सुधरना। को सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहंदे आओ मन रे दूजा भाव चुकाए मन विचों दवैत कढ दे। दूजा भाव उस एक नाल जुड़ अपने आपे दी खोज कर बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी नाहे दुनिया एक मेला है। इन्हां दे मगर ना भाजे किसी दे हथ च फड़िया होया नहीं ये तां आउण जाण ती लग्या होया। तू आप दी गल कर ला। बंदे खोज दिल हर रोज अपने आपे दी खोज कर ला। तू कौन है कित्थों आया की लैन आया है। प्रीतम जी कहंदे मन रे दूजा भाव चुकाए अंतर तेरा हर वसै गुर सेवा सुख पाए। हरि तेरे अंदर ही है। गुरु दी सेवा करके उसकी जानकारी लैके सुख प्राप्त कर। आत्मक सुख जिन्हों कहते हाँ वो आत्म सुख अपने अंदर जाके प्राप्त होना है। वो बाहरों नहीं मिलना कितों भी वो सब दे अंदर है। अंदर जुड़ना शुरू करता तो मिल जाना है। गुर सेवा सुख पाए रहाओ सच बाणी सच शब्द है जां सच धरै प्यार। महाराज किवें मिलूगा। हुण गुरु कोले पहुँच गए आपां हुण गुरु नूं पुछीए महाराज किरपा करो फिर मिला दिओ। कहंदे सिखा फिर इदां कर ए बाणी नूं पढ़िया कर बाणी नाल जुड़ गुरु दे वचन मन। 10वें पातशाह जी कल शाम की कथा दे विच भविख बाणी की गल कर रहे सी। आउण वाले समय दीयां गल्लां कह रहे सी नाल इह भी दस रहे सी कि जिहड़ा सिख साडी गल नहीं अज मनदा वो जुगां जुगांतरां तक भटकदा रहेगा दुखी होवेगा। फिर कहेगा यार गुरु ठीक ही कहना सीगा आपां मन्नी नहीं। कहो सतनाम श्री। ताइयों दुखी है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे सच बाणी सच शब्द है जां सच धरे प्यार। जदों सिख सच दे नाल प्यार करेगा
रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो सह मैं तिसका चेरा। रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। रहत बिना ना सिझै कोई, तां ते दृढ़ रहत सो दृढ़ कर होई। तां ते रहत नूं दृढ़ करके भाव जरूर रखनी चाहिदी आ। प्रीतम जी कहंदे सच बाणी सच शब्द, सच्ची बाणी नाल सच्चे शब्द नाल जो है जुड़ना कर, ਜਾਂ सच धरे प्यार, ਤਾਂ फिर सिखा तेरे हिरदे विच ही हरि जाग पैना है, प्रगट हो जाना है। हर का नाम मन वसै, हਉ मैं क्रोध निवार। हरि दे नाम का वासा अंदर हो जाना है। जिसने पहला यदि सफाई करनी, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। अज दा फरमान हुक्मनामा, काया कूड़ विगाड़ काहे नहाईए। कल्ले नहाउण दे नाल नहीं गल बननी, अंदर तां झूठ दा गंद पाया होया। को सतनाम सी। अंदरों तां काया नूं झूठ दे नाल जोड़ के बिगाड़िया होया, बिगड़ी हुई आ अंदरों। एक डॉक्टर दे कोले एक मरीज आउंदा रोज़, कहंदा भाई साहब जी उंगल पक्की हुई है, अंगूठे ते पाका निकले है, बड़ा मचदा है। डॉक्टर लालची है माया दा, उस दे उत्ते पट्टी करके मोड़ दिंदा, माड़ी मोटी मलम जी ला के, पर विचों गंद नहीं कढ़दा शाला भन के। को सतनाम सी। वो मरीज बेचारा मुड़ जाता, 10-12 दिन पट्टियां कीतियां, 100 रुपया रोज़ लिया। एक दिन किते गरां जाना पै गया, मुंडा भी माड़ा मोटा काम सीखिया सी, उन्होंने दुकान पर बिठा गया। वो मरीज फिर आया, भाई साहब जी तो डैडी वो तो गरां गए, की गल आ पाका यार कई दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा। कह लग्या लियाओ पट्टी कर दिन्ने आ। खोलिया शाला पक्या पिया, पानी चिट्टा विच भरिया होया। कहना ओहो हो ये की हो गया, ये पाका निकले। उन्हें चक्की चाकू कैंची चीरा दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी कढ़िया गंदा, सफाई की। कहता शुक्र है अज शांति आई है, 10 दिन हो गए आराम ही नहीं आ रहा, आराम आवे तां ही जे विचों गंद निकले। को सतनाम सी। वो वैद तां लालच दे विच फसिया होया, आप दा 100 रुपया रोज़ बनाई जा रहा है, तो वह बेचारा तड़फ रहा है। को सतनाम सी। बच्चे ने अंगूठा साफ करता, उतों माशाला जा कटता, साफ हो गया, उत्ते मलम लाती, उन्होंने शांति आ गई। तो गुरु प्यारिओ दूजे दिन फिर चलो आया, पट्टी तो करनी पैनी सी। आथने वैद आया, होर भई अज कोई आए? कहते हाँ जी मरीज तो आए सी। एक बंदा बेचारा आया, बड़ा तड़फदा सीगा, ਉਹਦਾ ਛਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ फिर ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਨੂੰ साफ करके चंगी तरह ਵੱਢ के ਉੱਤੋਂ मास कत्ता गंदा पट्टी करती, ਉਹਨੂੰ शांति आ गई। कहने जा होए तू तो गाहक ही खराब करता। को सतनाम। इन्हां डॉक्टरां नूं गाहकां दी लगी हुई है। आ करोना दे बहाने पता नहीं किन्ने नौजवान मारे इन्हां लोकां ने। को सतनाम श्री। तां गुरु प्यारिओ इसे तरह काया कूड़ विगाड़ काहे नहाईए, नाता 100 परवान सच कमाईए। अज का हुक्मनामा है। को सतनाम श्री। तो पातशाह जी कहने सिखो बख्शिश करते हैं कि इस शरीर नू साफ करिए, ताई नाम ने बसना इत्थे। ते जिन्ना चिर विचों असी हंकार नहीं छड्डदे, क्रोध नहीं छड्डदे, इन्हां विकारां नूं नहीं कढदे, उन्ना चिर दवाई बाहर बाहर पई आ, उन्हें काम ही नहीं करना। को सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहने सिखो आ फिर गुरु कोले मिल गए तैनों मिलावा, हर का नाम मन बसै, हम मैं क्रोध निवार, मन निर्मल नाम ध्याईए तां पाए मोख द्वार। पहला तो सफाई करिए इसकी। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। दुध पाउण तो पहला भी असी बर्तन नूं कई बारी चैक करते हैं, पानी नाल बार बार धो के भी नक नाल सुंघदे आ, कल वाली खटियासता नहीं पई किते विच। को सतनाम श्री।
ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਜਾਓ। ਝਾੜੂ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 5-7 ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਣਸਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ, ਝਾੜੂ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਘੱਟਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 5-7 ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆਹ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ ਧੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਧੱਪਾ ਜੋ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਟੱਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆਹ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਨਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਾੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਪਾਗੋ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਾਫ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨਮਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੀਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਲਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੀਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੀਰ ਲਾਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਗੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਲੀਰਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਖੰਡਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੰਡਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਲੀਰ ਬਦਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਤ ਬਦਲ ਲਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਾ ਫਿਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਬਿਨਸਦਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈ ਹੈ ਫੂਕ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਸਨ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ
इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोर तेरी पनिहारी। अब तू सीज भावें नहीं सीजे, हुण तेरी मर्जी आ, तेरे ते डिपेंड करदा है कि तू अपने आप नूं सुधारना है कि नहीं सुधारना। गुरु ने तो तैनू जुगतियां दस दियां भी ऐ कर लेगा तो ऐ हो जाऊगा, ऐ कर लेगा तो ऐ हो जाऊगा, अगे तेरी मर्जी है। जे नहीं सुधरदा, नहीं बोली बदलदा, नहीं बोल बाणी बदलदा सी ना एक मनुख। 10वें पातशाह जी बैठे आ ताबिया, एक सिख सतगुरां दे उपर चौर साहब कर रहे हैं। एक रिछ वाला रिछ लैके आ गया, कहन लगे महाराज तुहानू खेड़ा दिखावां रिछ दा। संगतां ने राही आग्या ले ली, पातशाह कहंदे दिखा दे। वो संगत भी घेरा घत के खड़ गई, पातशाह भी आसन ते बैठे देखण लगे। रिछ ने बड़ियां खेडां विखाइयां ते मगर खड़ा चौर साहब वाला भी बहुत हसी जाता है। पातशाह कहंदे बड़ा हसदा? कहंदे हाँ जी, रिछ किवें करदा? कहंदे पता कौन है ये? कहंदे जी कौन है? तेरा बापू है। कहो सतनाम सी मेरा प्यो है? हाँ। अच्छा तुहाडी सेवा करके रिछ ही बनांगे, फिर की सेवा का फायदा? कहो सतनाम सी। सतगुर साचा क्या करे जो सिखा में चूक, गुरु उत्थे की करे? महाराज मेरा प्यो तुसीं तां जानी जानो, झूठ तां नहीं बोलते। जे ये रिछ बन गया इहनूं कड्डो, हुण रिछ दे जामे चों मुक्ति करो। पर ये बनिया क्यों? कहंदे बनिया कि एक दिन एक जिमींदार गड्डियां दे सौदा लद के लाहौर तो दिल्ली नूं जा रहा है ते रस्ते विच दीवान सजिया साडा, और उस सिख ने सोचा भी कड़ा प्रशाद वरत रहा, भोरा आपां भी ले लीए भला हो जे। वो छड्ड के गड्डे भज्जिया भज्जिया ते कहना देग दे दिओ। देग वरता रहा सी तेरा बापू उस वेले। हुण वो बेचारा गड्डियां दे नाल है, धूड़ उड़ उड़ के दाड़े ते पई हुई है, बडरूप जा हो जाता बंदा। खेतीबाड़ी करने वालियां दा ऐसा जीवन हो जाता। पर वो गड्डे भी तुरे जा रहे हैं, तो वह फटाफट देग लैके रलना चाहता है। तो तेरे बापू ने कई बारी कहा भी कणका दे दे, खड़े खड़े मंगी, क्यों काली सी उन्होंने दिता ना। इधर वंडन लगे, इधर मूहरे हो गया, इधर वंडन लगे, इधर मूहरे हो गया। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਣਕਾ नहीं रखिया, अपनी बोलबाणी नहीं बदली, सुभाव नहीं बदलिया। ਉਹਨੂੰ उल्टा कहना क्यों रिछ वांगू टप्पी जाना, बह के लै ला। उन्हें थले देखा किणका डिग्या, चक के मूँह च पा लिया, कह लग्या मैनूं तां देग मिल गई, रिछ तू बनेगा। हुण कहो सतनाम सी, रिछ होएगा तू, मैनूं तां देग मिल गई। वो तो चलिया गया इन्नी गल कह के, पर वह बचन चल गया। अक्सर वह भी साध सी खेतीबाड़ी वाला, कोई सतनाम सी। कोई साध कोई भदमिया वाले थोड़े होंदे है, 10 नौहां की किरत करने वाला साध है। कोई सतनाम श्री वो बन गया रिछ ते आ फिरदा हुण, ते महाराज दा उद्धार करो। फिर रिछ वाल नूं कहा भी किन्ने पैसे लैने आ रिछ दे? कहंदा ना महाराज मेरी तां मसां फड़िया, मैं तां कमाई आ मेरी जिंदगी भर दी। कहंदे हुण नहीं जान देना, ये साडा बच्चा है, साडा सिख है, हुण इहदा उद्धार करना। तू रिछ होर फड़ ली, तैनूं पैसे दे देने जिन्ने मर्जी लै जा। खजाने चों माया देती उसनूं, रिछ तो लै गया हथ नाल। पातशाह जी ने फिर उहनूं देग छकाई ते रिछ ने शरीर छड्डिया। तो गुरु घर आके जे साडी बोलबाणी नहीं बदली तो फिर गुरु उत्थे की करूगा? को सतनाम श्री। खैर विचारा इत्थे रोकदे आ। पातशाह जी कहंदे सिखा हम मैं बिच जग बिनसदा मर जमै आवे जाए, मनमुख शब्द ना जाननी। ये मन मत करके गुरमत विच नहीं आउंदा, गुरु दे बचनां नूं नहीं समझदा। इस करके जासन पत गवाए, फिर दुनिया चो अपनी इज्जत खराब करके चले जाते आ। गुर सेवा ना पाई है, सच्चे रह समाए। आओ गुरु की सेवा भी करिए ते गुरु दे बचन भी मनीए। सिमन सेवा दोनों की लोड़ है, गुरु का बचन भी मनीए। शब्द मनिया गुर पाई है, गुरु तो मिल गया, गुरु की गल नहीं मनी तो गुरु मिलिया ही नहीं तैनू हजे। को सतनाम श्री। गुरुद्वारा तो रोज आउंदा है, पर गल नहीं मनदा तो ये आया ही नहीं गा। सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो भाओ, उसनों सुख न उपजे। 100 गेड़ा आओ जाओ, आथन तक 100 बारी मत्था टेक जो, फिर कोई फायदा नहीं होना। को सतनाम श्री। जे गुरु दे शब्द ते भरोसा नहीं
गुरु की गल नहीं मनता फिर कोई फायदा नहीं होना। शब्द मन्निया गुर पाईया, गुरु की गल मननी पैनी है। विचों आप गवाए आपदी मनमत छड्ड के मननी पैनी आ। गुरु नूं ये नहीं सलाह देनी जिवें बेदावा लिखण वालियां ने रामेण की धरती ते जंगल विच कहा सीगा, महाराज तुहाडी संधि करा दी औरंगजेब नाल, सारा कुछ खराब हो रहा। कहंदे हुण तां हो गया, साहिबजादे शहीद हो गए सारे, और पंजवें पातशाह शहीद हो गए, नौवें पातशाह शहीद हो गए। तुसीं उदों कित्थे गए सी वड्डे चौधरी? कहंदे साडी सिद्धि आ औरंगे नाल, असीं चौधरी हाँ जी पिंड दे। कहंदे तुसीं उदों कित्थे सीगे? तां उन्हां दे किसे चौधरी दे हंकारी दे मूँह चों निकल गया, असीं सोनू गुरु नहीं मनदे। कहंदे चंगा जे गुरु नहीं मानते ना इत्थे कागज ते लिख के दे दिओ, क्योंकि मौके दा गुरु जामन है, जुम्मेवार है संसार दा। और जिहड़ा मूँह ते कह के जांदा कि मैं तैनूं गुरु नहीं मनदा, फिर ਉਹ ਤਾਂ जानकारी रखनी पैनी है ना। उत्थे दरगाह दे जवाब भी देना गुरु ने। फिर को सतनाम सी ऐ ते सैन कर दिओ, जिहड़ा कहना मैं तुहानूं गुरु नहीं मनदा, कईयां ने सैन करते। फिर उत्ते लिखता तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। तुसी मैनू सलाह देन आयो कि मेरी सुनन वास्ते आयो? गुरु नूं सलाह नहीं दित्ती जा सकदी, गुरु दी मननी पैनी आपदी मत छड्ड के। प्रीतम जी कहंदे शब्द मन्निया गुर पाई है, विचों आप गवाए अनदिन भगत करे सदा साचे की लिव लाए। इस करके रोजाना गुरु दी भगती करे, गुरु दी गल मन के उहदे मुताबक चले, इहो ही भगती आ। अखा मीच के बहंदा पर गल मनदा नहीं, उन्होंने भगती नहीं मन्निया गुरु साहब ने। भगती आ गुरु की गल मननी, जिवें लहणा जी ने मन्नी आ, जिवें अमरदास जी ने मन्नी आ, गुरु रामदास जी ने मन्नी आ। मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं, अनदिन भगत करे सदा साचे कीले वलाए, नाम पदार्थ मन वसिया नानक सह समाए। फिर सहजी तेरे हिरदे विच हरि दा नाम है जिहड़ा ओहदा वासा हो जाना है ते तेरी गल बन जानी आ। इस करके पातशाह जी कह रहे सीगे परमेश्वर कृपा करके गुरु कोले लेके आया, आपां गुरु वाले बनीए, गुरु की गल मन के अपना रहिंदा जीवन जिहड़ा है वह सफला करिए। बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने हाजरियां लवाइयां। विचारा इत्थे रोकदे आ, अगले शब्द की विचार कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे, सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह